Hello students, how are you? Good morning. Students, in our previous video, we have done two part of this chapter, and from the last 2 days we are going to do the little girl. That is our chapter number 3. Okay, and in this chapter we had done that how she messed the whole house just because of her little silly mistake. What silly mistake she did? She torn the paper, the important papers of her father. उसने क्या किया? अपने फादर के जो इम्पोर्टेंट पेपर है उनको फाड़ दिया एंड जस्ट पुट देम इनटू द कुशन, स्टफ देम इनटू द कुशन. उसने क्या किया? उनको ठूंस दिया कुशन के अंदर. And as his father come to know that all these things had done by the girl, all these mess was just created by the girl, he became so angry and he came into the house, in the room of little girl, and then he with a ruler. ओके कि वो उसके बाद में जब उन्हें पता लगा कि ये सारा मैच जो है उस लड़की के द्वारा किया गया है, तो मतलब उनकी बेटी काजिया के द्वारा किया गया है, तो वो वहाँ पर एक रूलर के साथ में आए एंड आफ्टर दैट ही पनिश्ड हर डॉटर, हिज डॉटर. उसने उसके बाद में अपनी बेटी को पनिश किया. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग फर्दर ऑफ दिस पार्ट एंड वी हैड डन टिल his punishment to her daughter. Okay, now paragraph number 8, or we can say part number 8. Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. कि after the punishment of काजिया, कि काजिया के पनिशमेंट देने के बाद में her grandmother came to her and wrapped her in a shawl. उसकी दादी माँ आई और उसने क्या किया? wrapped कर लिया. wrapped का मतलब क्या है? wrap का मतलब होता है लपेटना, ठीक है, जिसे हम ये कहेंगे कवर. कि सी कवर्ड हर विद अ शॉल. उसने क्या किया? उसे शॉल के अंदर जो है वो कवर कर दिया एंड आफ्टर दैट सी रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर. रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर. आपने देखा होगा कि एक चेयर जो होती है, ठीक है, इस प्रकार से एक चेयर बनी हुई होती है और उसके नीचे यूँ लगा हुआ होता है और वो चेयर जो है वो हिलती रहती है. तो वो जो चेयर हिलती रहती है उसे जो है वो रॉकिंग चेयर जो है वो कहा जाता है. तो वो रॉकिंग चेयर उसके ऊपर ला करके उसने क्या किया? बैठा दिया अपनी जो है वो काजिया को और उसके बाद में उसने हिलाना शुरू कर दिया. क्लियर? आफ्टर दैट what did God make fathers for? She sobbed. And after that as Kazia was rocking on the wheelchair, not wheelchair, rocking chair के ऊपर उसे जो है वो झूले दे रहे थे. She complained to God. उसने God से कंप्लेन की. क्या कंप्लेन की? उसने God से कहा कि why God you made fathers for? कि God तुमने fathers जो है वो किसके लिए बनाए हैं? क्यों बनाए हैं? Just to give punishment, केवल punishment देने के लिए. Down came the ruler, here's a clean hanky, darling, blow your nose, go to sleep, pet, you will forget all about it in the morning. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. After that, grandmother replied her and said that please take a hanky and just clear your nose. कि बेटा ये हैंकी लो और अपना नोज जो है उसे साफ कर लो and go to bed. As you will wake up in the morning, you will forget everything. तुम जाओ, जाकर के सो जाओ. जैसे ही तुम सुबह उठोगे तुम सारा कुछ क्या करोगे? भूल जाओगे. तो फिर क्यों परेशान हो रही हो? Why are you taking so you are getting so upset? कि इतना क्यों अपसेट हो रही हो? Don't worry, I have also tried to explain everything to your father. मैंने तुम्हारे पिता को हर चीज़ एक्सप्लेन करने का प्रयास किया था, but he was also upset, so that why he didn't listen to me. और इसलिए उसने मुझे नहीं सुना. पर कोई बात नहीं, tomorrow morning everything will be clear and everything will be okay. But the child never forget. Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. But after that, whenever she came in front of her father, every time she just cling her hand behind her back.
क्लिंग मतलब जोड़ लेना इस तरह से, ठीक है। उसने क्या किया, जो हाथ है उनको जोड़ लिए, इस तरह से यूं एकदम से जोड़ लिए, और जोड़ने के बाद में उसने क्या किया कि जो अपनी जब भी उसके फादर, व्हेन एवर हिज फादर केम इन फ्रंट ऑफ हिम, ही क्लिंग हर हैंड जस्ट बिहाइंड हर बैक एंड अ रेडनेस वाज ओवर देयर इन हर चीक्स। और उसके बाद में उसके जो गाल हैं, चीक का मतलब गाल, कि उसके जो गाल हैं उसके ऊपर रेडनेस जो है वो वहाँ पर आने लग जाती थी, वो लाल हो जाते थे। The McDonald's lived next doors. Here, McDonald's, it's not a company, okay? It's a caste, name of a person. ये एक जाति है। मैकडोनल्ड्स जो है वो वहाँ के, जाति से मतलब का ये कह सकते हैं कि सरनेम जिसको बोलते हैं। मान लो जैसे एक वर्मा जो है वो सरनेम होता है, शर्मा जो है वो सरनेम होता है, ऐसे ही मैकडोनल्ड्स भी जो है वो एक सरनेम है, ठीक है। यू हैव लॉट ऑफ सरनेम्स अराउंड यू, पीपल हैव लॉट ऑफ सरनेम्स, जस्ट एज आई एम बिश्नोई, okay, some one of you are Sharma, some of you are Verma, some are Kumavats. So suppose that here he is saying that Kumavats lives next to her house. Kumavats lives next to her house मतलब कुमावत जो है वो उसके घर के बगल में ही। नेक्स्ट किसके लिए यूज होता है उसको ध्यान से देखिए, नेक्स्ट और नियर, there is a different between both of them. Next means suppose that you have two houses, okay, there are two houses. These are two houses, okay, and one is a few meters away. Suppose that this house is 80 meters away, okay, and but here the both houses has a common वॉल। यहाँ पर दो घर हैं, दोनों घरों की एक कॉमन वॉल है, जबकि एक घर जो है वो थोड़ा सा 80 मीटर्स अवे है। तो अब ये बताइए कि किसके लिए क्या यूज़ किया जाएगा, कि जैसे ही कोई अगल बगल के अंदर होता है, यानी कि इस प्रकार से एक ही दीवार आती है, तो उसके लिए हम कहेंगे नेक्स्ट। दिस हाउस इज नेक्स्ट टू दिस हाउस, ओके। बट हियर इफ एनी हाउस इज अवे, फ्यू डिस्टेंस अवे फ्रॉम आवर हाउस, अगर कोई घर हमसे कुछ दूरी पर है हमारे घर से, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, नियर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो उसने क्या कहा, मैकडोनल्ड्स वेयर इज इट, हाँ, लिव्ड नेक्स्ट डोर। लिव्ड नेक्स्ट डोर मतलब मैकडोनल्ड्स जो है वो बगल वाले घर के अंदर जो है वो रहते थे। दे हैव 5 चिल्ड्रन एंड लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सा देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग एंड एज सी सा थ्रू द फेंस। व्हाई ही इज सेइंग फेंस, बिकॉज यू कैन सी थ्रू दिस, यू कैन अंडरस्टैंड दिस पिक्चर। हियर द गर्ल इज स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। फेंस मतलब बाड़, जो दीवार हम बनाते हैं, बाड़ बनाते हैं घर को अपने बाउंड्री को सील करने के लिए, तो फेंस को आप बाउंड्री बोल सकते हैं। फेंस मीन्स बाउंड्री। एज यू कैन सी हियर द लिटिल गर्ल इज सीइंग जस्ट बिहाइंड द फेंस फ्रॉम लिटिल क्रैक्स। छोटे छोटे जो है वो क्रैक्स बने हुए हैं, दरारें बनी हुई है, उसमें से लड़की देख रही है। एंड दिस वन इज मैकडोनल्ड्स हाउस एंड हियर ही हैज 5 चिल्ड्रन एंड ऑल आर प्लेइंग विद देयर फादर। So here the same thing is saying by this girl कि when she saw McDonald's who was living just next to her house, there she saw that McDonald was playing with his 5 children and they were playing tag. Tag क्या होता है, एक जैसे एक टांग से पकड़ना होता है ना, उसको टैग बोलते हैं। In the evening the father with the baby, the father was at that time with the baby Mao on his shoulder, the baby Mao. Here you can see the person, yeah, the boy who is on the shoulder of that person, his name is Mao and he is on the shoulder,
Okay, the Mao is on his shoulder, the two little girls hanging on his coat pockets. दो लड़कियां जो है उनकी कोट की जो पॉकेट पकड़ करके जो है वो झूम रही थी. यू कैन सी वेरी क्लियरली इन द पिक्चर में आप बहुत आसानी से बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख सकते हो. टू गर्ल्स हैंगिंग ऑन हिज कोट पॉकेट्स ran around and round the flower beds. फ्लावर बेड्स मतलब क्यारियाँ. तो वो जो क्यारियाँ बनी हुई थी फूलों की, उनके चारों तरफ वो जो है वो दौड़ रहे थे, शेकिंग विद लाफ्टर, और वो क्या है, हंस रहे थे, हंस के साथ जोर जोर से हंस रहे थे. Once he saw the boys turn the hose on him and he tried to catch them laughing all the time. कि एक बार जैसे ही जैसे ही लड़की ने देखा, द बॉयज टर्न द होज ऑन हिम, कि जो लड़का है उसने अपना जो चेहरा है वो उसकी तरफ घुमा लिया है. एंड ही ट्राई टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, कि उन्होंने क्या किया, उसको पकड़ने का प्रयास किया पूरे समय के दौरान. एंड ही ट्राई टू देन इट वाज शी डिसाइडेड दैट देयर वर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फादर्स एंड आफ्टर दैट शी थॉट दैट हिज फादर इज डिफरेंट फ्रॉम माई फादर. उसके पिता जो है वो मेरे पिता से थोड़ा अलग हैं. तो इस तरह से उसने सोच करके फिर वहाँ पर उसने जाने से थोड़ा सा अपने आपको कतराई और वहां पे चुपचाप बैठी वो सोचती रही. सडनली वन डे मदर बिकम इल. व्हाट हैपेंड देयर, कि वन डे हर मदर बिकम इल. हुज काजियाज मदर, काजिया की माँ बीमार हो गई. एंड सी एंड ग्रैंडमदर वेंट टू हॉस्पिटल. सो जस्ट फॉर चेकअप हर मदर एंड हर ग्रैंडमदर बोथ वेंट टू द हॉस्पिटल. दोनों ही हॉस्पिटल चले गए. द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस. Now the little girl was alone in the house and a person, Alice, was with him, the cook. And who is Alice? Alice is a cook in her house. That was all right in the daytime. कि during the daytime everything was all right. दिन के दौरान सब कुछ सही था. But while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. But in the evening, as she went to the bed, she getting started अफ्रेड. उसने डरना शुरू कर दिया. वो जैसे ही बिस्तर पे गई सोने के लिए उसे डर लगने लगा. ठीक, what will I do if I have a nightmare? Now she was thinking lying in the bed. अब वो बिस्तर में लेटी हुई सोच रही है. क्या सोच रही है? What she was thinking? She was thinking that if suddenly I saw a nightmare, अगर अचानक मैंने एक नाइटमेयर देख लिया. नाइटमेयर मैंने आपको पहले भी बताया था क्या होता है नाइटमेयर. What do you mean by nightmare? Bad dream. किसको बोलते हैं? बुरे सपने को जो है वो नाइटमेयर कहा जाता है. तो she said, she imagined in herself. She was thinking that if I saw a nightmare, यदि मैंने एक नाइटमेयर देखा तो क्या होगा? She asked, I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. Granny means grandmother. Granny is used here for grandmother. So she is thinking here that whenever I saw any type of nightmare in my life, so at each and every time my granny means my grandmother takes me with her, कि हर बार वो मुझे अपने साथ में ले जाती है. जब भी मैंने कभी क्या देखा, एक सपना देखा, तो वो हर बार मुझे अपने साथ में ले जाती है. बट टुडे व्हाट विल हैपन, बिकॉज ग्रैनी इज नॉट एट होम, so I can't stay in the dark alone. It all gets whispery because everything looks like that, everything is whispering. हर कोई फुसफुसा रहा है, मुझे ऐसा लगता है. तो इसलिए उसने अपने आप को बिल्कुल जो है इनसे अलग पाया. उसने देखा कि आज मैं बिल्कुल ही अकेली हूँ. You just go to sleep, child, said Alice, pulling off her socks. Now after that Alice came to her and just pulling her socks off. उसके जो socks हैं उनको निकालते हुए, उसको खींचते हुए उसने कहा, बेटा go and sleep into the bed, कि बेटा जाओ और जा करके बिस्तर में सो जाओ. And don't you scream and wake your poor pa. And don't scream. Scream means cry. मैंने पहले भी कहा था, I have told you earlier about it. Scream means cry. And don't cry in the night because your poor pa means tired pa is lying just near you. वो तुम्हारे पास में ही लेट रहे हैं. Near you means next room. In next room, बगल के कमरे में ही लेट रहे हैं, तो उनको ज़्यादा चिल्ला करके जगाना मत, वो थके हुए हैं. But the same old nightmare came. But suddenly when she was lying in her bed in the night, she the same nightmare which was
which she was seeing from a lot of time, बहुत सारे समय से वो उनको देख रही थी, तो उसने सेम नाइटमेयर उसने देखा. The butcher with a knife and a rope. Suddenly she saw that a butcher. Butcher क्या होता है? कसाई को बोलते हैं. किसको बोलते हैं? कसाई. A person who kill animals. A person who kills animals and tear their skin, और उनकी जो है वो स्किन जो है उनको वो टीयर कर लेता है, फाड़ देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बूचर कहा जाते हैं. तो द बूचर विद ए नाइफ एंड ए रोप. उसने क्या देखा सपने में कि एक बूचर जो है वो एक नाइफ, एक चाकू के साथ में और एक रोप के साथ में आया. हु केम नियरर एंड नियरर. वो नज़दीक से नज़दीक आ रहा था. स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, एंड ही वॉज स्माइलिंग विद ए वेरी ड्रेडफुल. ड्रेडफुल मीन्स भयानक, हेटफुल. भयानक, कि एक बहुत ही भयानक सी मुस्कुराहट उसके चेहरे के ऊपर थी. While she could not move, could only stand still. But when she saw in the nightmare, when she saw herself in front of that butcher, she was not moving. वो हिल नहीं रही थी वहाँ पे. She could only stand still. वो केवल शांत खड़ी रह सकती थी. Crying out, and after that she was crying to save herself from that butcher. Grandma, grandma, save me. She woke shivering to see father beside her, but as she woke up from her sleep, what she saw that her father was standing beside her bed. कि उसने क्या देखा कि जैसे ही वो एकदम से जागी उस सपने की वजह से, तो उसने देखा कि उसके फादर जो हैं वो उसके बिल्कुल पास में, बिस्तर के पास में जो है वहाँ पर खड़े हुए हैं. एंड अ कैंडल इन हिज हैंड, और एक हाथ में उसके क्या थी? कैंडल थी. व्हाट्स द मैटर, ही सेड. एकदम से उन्होंने पूछा फादर ने, व्हाट्स द मैटर, क्या मामला है? A butcher, a knife, I want granny. And after that she explained, but she didn't explain clearly. She said only just a butcher. I saw a butcher in my nightmare, and he had a knife in his hands. And after that she said, no, I need my granny. मुझे मेरी granny चाहिए, मुझे दादी माँ जो है वो चाहिए. He blew out the candle, bent down and caught up the child in his arms. After that he blew out the candle. उसके बाद में उसने कैंडल को जो है वो बुझा दिया. ब्लू आउट का मतलब होता है बुझा देना. उसने कैंडल को बुझा दिया. बेंड डाउन, नीचे झुका. एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, और बच्चे को यानी कि काजिया को उसने अपनी बाजुओं में पकड़ लिया. कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू हिज बेडरूम. आफ्टर दैट ही कैरिंग that girl, means Kazia, in her arm and take her to his own bedroom. A newspaper was on the bed. At that time he was reading a newspaper, I think so. So he put away the paper. After that he put away the paper from his bed, and then carefully tucked up the child, and then he tucked up the child there. Tuck up मतलब वहाँ पे उसको लेटा देना, बच्ची को वहाँ पे लेटा दिया. He lay down beside her, बगल में सो गया उसके. He half asleep still, अभी भी उसे आधी नींद आई हुई थी. Still with the butcher's smile all about. लड़की अभी भी जो है उसको जो है वो बूचर की वो स्माइल जो है वो याद आ रही थी, वो दिखाई दे रही थी. एंड ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, और ऐसा लग रहा था वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो वहाँ पर देख रही थी. एंड सी क्रेप्ट क्लोज टू हिम. उसके बाद में वो बच्ची धीरे से रेंग करके, क्रप्ट क्लोज, वो धीरे से एकदम से नज़दीक आ गई, अपने पिता के अंदर किया और घुस गई. स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, और उसने क्या किया, उसकी बाजू के नीचे अपने सर को जो है वो छुपा लिया. हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उसे अपनी फादर की शर्ट जो है उसने टाइटली पकड़ ली कि भाई मुझे कहीं डर ना लगे. देन द डार्क डिड नॉट मैटर, सी ले स्टिल. उसके बाद में उस अंधेरे ने बिल्कुल भी उसको कोई डराया नहीं. आफ्टर दैट she was not afraid from the, there was not any frighten from the dark, and she slept very nicely. Here, rub your feet against my legs and get them warm, said father. After that, father very politely said to her daughter, said Kazia, that rub your feet with my legs, कि अपनी पाँवों को मेरे legs के साथ में रगड़ो ताकि वो गर्म हो जाए, so that it become warm and you can take a very sound sleep. Tired out, he slept before the little girl, and as you know that
her father was very tired up at that time, so he also slept with Kazia that night with her. A funny feeling came over her. अब जैसे वो सोई तो उसे एक बहुत ही अच्छी सी फीलिंग, फनी मीन्स हियर अ वेरी गुड फीलिंग, एक अच्छी फीलिंग उसे आ रही थी. Poor father, not so big after all. And after that she was thinking that my poor father, बेचारे पिता. As I was thinking about him, he is not so. जैसा मैं इसके बारे में सोच रही थी वो ऐसे नहीं है. एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, क्योंकि यहाँ पर इनकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है. मेरी तो देखभाल करने वाले बहुत सारे हैं, बट हियर इज नो बडी हु लुक आफ्टर हर. He was harder than grandmother, but he was a nice hardness. At that time, first time she felt that her father is really hard. His body is hard, but he is not harder from his heart. He is not harder from grandma. And every day he had to work and was too tired to be a Mr. McDonald. But after that she thought that he had to go for work. उसके बाद में उसने सोचा कि भाई उसको घर पर जो है काम पर जाना पड़ता है. and was too tired, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा थक जाते थे. to be a Mr. McDonald, तो इसी वजह से वो Mr. McDonald नहीं बन सकते. Why she said that he can't become a Mr. McDonald? Because Mr. McDonald always plays with his children, but here his father is not playing with her. Why he is not playing with her? First time she thought, पहली बार उसने सोचा कि उसके फादर जो है वो क्यों उसके साथ नहीं खेल सकते थे. Because he was too tired from his work. वो अपने काम से बहुत ज़्यादा थके हुए थे. She had torn up all his beautiful writing. She stirred suddenly and sighed. उसके बाद में सी हैड टर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग. उसने उसके बाद में जो भी उसके प्रति जो भी अपनी सोच थी, सी टर्न अप हर थॉट्स दैट वाज अगेंस्ट हर फादर. उसने जितने भी उसके फादर के खिलाफ जो उसके विचार थे सबको उसने हटा दिया. सी स्टिड सडनली, अचानक ही वो थोड़ा सा यूँ कांपी. स्टिड मतलब कांपना. एंड साइड मतलब गहरी सांस लेना, एकदम से यूँ इस तरह से उसने आह भरी. What's the matter? asked her father. Again, as he stood up, her father asked from her again, what's the matter, beta? Another dream? Did you see another dream? क्या तुमने दूसरा ड्रीम देखा? Oh, said the little girl. छोटी बच्ची ने कहा, नहीं, my head's on your heart. मेरा जो सर है वो आपके हर्ट के ऊपर था. And I can hear it getting और going, और मैं आपके हर्ट को जो है वो चलते हुए सुन सकती थी, उसकी धड़कन को सुन सकती थी. I can feel and hear your beating of your heart. What a big heart you have got, father dear. कि father dear, you have a very big heart. Why she said so big heart? Because he cares everybody in his house. That's why she said that you have a very big heart. Okay, so I think you all have understood this chapter very well. So do your question answer. Tomorrow in next class I will provide you the PDF of question paper so that you can do your questions in your copy. Okay, thank you.